Okay, so now in this exercise we'll learn how to draw the pictogram. In the previous exercise we have discussed कि जो अगर पिक्टोग्राम में डेटा दिया होता है उसको से हम न्यूमेरिकल इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, बट इन दिस exercise we will do just the opposite. Numerical data will be given to you and you have to draw or interpret that numerical data in terms of pictogram. Okay, so this is the question 1 of exercise 9.2. First of all, I will read the question. Total number of animals in 5 villages are given as follows. ठीक है, आपको एक गांव में 5 गांव में कितने एनिमल्स रहते हैं ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई है. यू हैव टू प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ ऑफ दीज एनिमल्स यूजिंग सिंबल टू रिप्रेजेंट. You have to use that particular symbol to represent 10 animals. This is the scale. ठीक है, and answer the following question. So let's draw the table first. कितने villages हैं? 5. There are 5 villages. First column में you will we don't need to. Do we need to? Okay. In the first column you will write villages. Second column you will write number of animals. Number of animals. और थर्ड में you will write जो भी उनका रिप्रेजेंटेशन है. You don't need to write अलग से, but representation is this. Representing this cross sign is representing 10 animals. So this you have to write here also, representing 10 animals. Okay. So due to lack of space I have written it here also ताकि आपको clearly समझ में आए. इस चीज को आपको यहाँ पे भी लिखना है. So let's start with village A. Village A में there are 80 animals. So you have to draw 8 symbols you will draw. ठीक है, क्योंकि एक symbol जो है वो 10 animals को बता रहा है. We have 80 animals. ठीक है, तो आप कितने ड्रॉ करोगे? You will draw 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Okay, so in village A there are 80 animals. और ये जो एक pictogram है, it is depicting 10 animals. So if we are having 80 animals and this one figure is depicting 10 animals, so it clearly means that we have to draw 8 such kind of figures. ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. These are the 80 animals. Now we will draw for figures for village B. In village B there are 120 animals. That means you have to draw how many figures? How many figures? Class? ठीक है, अगर देखो if anybody is having any confusion, ठीक है, तो हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था? हमने मल्टीप्लाई किए थे, है ना? जो भी बेटा प्लीज लिसन टू मी फर्स्ट. जो भी हमें ये फिगर्स दिए थे उनको मल्टीप्लाई किया था. बट सिंस अगर आपके पास ये वाली इंफॉर्मेशन है तो आप क्या करोगे? इस इंफॉर्मेशन को अगर आप अपने स्केल से डिवाइड करोगे तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कितना करना है. फर्स्ट केस में यू हैव टू डिवाइड 80 by 10, तो आंसर विल बी 8. तो आपको 8 फिगर्स ड्रॉ करने. सेकंड केस में यू हैव टू डिवाइड 120 by 10, तो आपको मिलेगा 12, है ना? क्वेश्चन में मिलेगा 12. तो दैट मीन्स आपको यहाँ पे 12 फिगर ड्रॉ करने. यहाँ की इंफॉर्मेशन आपने मल्टीप्लाई करके ली, लेकिन जब आपको थर्ड वाले ब्लॉक की इंफॉर्मेशन गिवन है तो सिंपली अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रही है देन यू कैन सिंपली
divide it with the scale. So we are dividing here 120 by 10. Our answer is 12. That means we have to draw 12 blocks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Okay. We have to draw 12 figures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This is your 11 and this is 12. Okay. Now for village C, we have 90 students, 90 animals. So clearly you will divide 90 by 10. Your answer will be 9. That means you have to draw 9 figures. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Now D. D में you have 40 animals. So divide 40 with the given scale, that is your 10. 40 divided by 10 will give you 4. That means here you have to draw 4. Okay, only 4 figures. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E में you have 60 villages. So 60 divided by 10. 60 divided by 10 will give you 6. That means you have to फिर से ये समझ में नहीं आ पा रहा है ना. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So this is the way in which you will depict the pictorial data in form of numbers. इससे पहले वाली एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि हमें ये पिक्टोग्राम का डेटा दिया था एंड वी हैव इंटरप्रेटेड दैट डेटा इनटू न्यूमेरिकल फॉर्म. दिस क्वेश्चन में वी हैव डन जस्ट द ऑपोजिट. व्हाई? बिकॉज इसमें हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज दी थी एंड उसको विद द हेल्प ऑफ स्केल वी हैव ड्रॉन अ पिक्टोग्राफ. So in both the ways you are now since you have done both the ways you are well informed about this method of the pictograph. ठीक है. इस मेथड में you will see a drawback. ड्रॉबैक क्या है कि अगर ये जो नंबर है 80, 90, 40, 60 ये तो नंबर्स हैं जिनको हम स्केल पे मार्क कर सकते हैं, लेकिन अगर हम थाउजेंड्स में डील कर रहे हैं है ना, तो वी कैन नॉट ड्रॉ. अगर जो ये मेरा स्केल है, अगर मैंने स्केल को एक फिगर इज इक्वल टू 10 एनिमल्स की जगह एक फिगर इज इक्वल टू 5 एनिमल्स कर दिया होता तो क्लियरली मुझे यहाँ पे और सारे फिगर्स बनाने पड़ते है ना. तो इसी ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए वी हैव अनदर मेथड ऑफ डिपिक्टिंग और इंटरप्रेटिंग डेटा, दैट इज योर बार ग्राफ मेथड, जिसको हम आगे की एक्सरसाइज में पढ़ेंगे. ठीक है. इट इज वेरी कंफ्यूजिंग कि आप डायग्राम्स को ड्रॉ करो, आप न्यूमेरिकली भी डेटा को इंटरप्रेट करो है ना. और पिक्टोग्राम में एवरीथिंग इज अबाउट द स्केल. अगर आपका स्केल सही नहीं है तो आपका फिर ये फिगर सही बनेगा ना, योर डेटा विल बी इंटरप्रेटेड करेक्टली. ठीक है. तो टू ओवरकम दिस ड्रॉबैक ऑफ पिक्टोग्राम वी यूज बार ग्राफ, जिसके बारे में विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज. ठीक है. तो बेस्ड ऑन दिस पिक्टोग्राफ वी हैव टू आंसर सर्टेन क्वेश्चंस. द क्वेश्चंस आर how many symbols represent animals of village E. कितने symbols represent कर रहे हैं animals of village E? तो six symbols are okay. 6 symbols are representing animals of village E. Okay. Now next is which village has maximum numbers of animals. So कौन से village में you can see maximum numbers of animals? Clearly in village B there are 120 animals which are depicted pictorially by 12 figures. So किस village में होंगे maximum animals? In village B. तो मैं बस यहाँ पे village B लिख दे रही हूँ. You will write the complete statement. Okay. Now which village has more animals? Village A or village C? Village A or C में से which village is having more animals? Village C is having more animals. C is having.
Village C is having more animals than that in village A. Okay, B part में don't just write village B. You have to write the complete statement. Okay, so this was your question. आप क्वेश्चन नंबर 2 को you can do it as homework scales मैं बता देती हूँ. Question number 2, Amit, write it down. Question number 2 of exercise 9.2 is your homework. Scale में first of all I explain the question. Total number of students of a school in different years is shown in the following table. ठीक है, आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है टेबल में, उसको आपको कैसे देखना है. लेट्स सी. ईयर 1996 में एक स्कूल में 400 स्टूडेंट थे. ईयर 1998 में दे वर हैविंग 535 स्टूडेंट्स. ओके, और ईयर 2000 में लीव इट, आई विल एक्सप्लेन क्वेश्चन क्योंकि इसमें हाफ नंबर्स बहुत ज्यादा है. So I'll do the question. It's better that I'll do. वरना. So while we are drawing the pictograph, there is a thing that अगर कोई information हमारे scale में, जैसे मैंने पिछले question में 1 unit scale लिया था या 1 animal क्या लिया था scale? What was the scale? The scale was, this was representing 10 animals. है ना, ये scale हमने लिया था in the previous question. But if in case or if you will see to the question, उसमें सारी values were easily divisible by our scale. 80 was divisible, 90 was divisible, 60, 120, 40, all these numbers were clearly divisible by 10. ठीक है. So what if we come across any number which is not divisible by 10? अगर मैंने मान लो village A में जो भी information given है, it was not 80, it was 85. तब इसको मैं कैसे दिखाती पिक्टोग्राफ में, है ना, इसको मैं कैसे दिखाती? तो आपको क्या होगा कि बेटा प्लीज, बेटा इफ यू विल रिमेंबर दैट कि पिछले क्वेश्चन में हमने जब गर्ल्स को बनाया था तो कुछ क्वेश्चन में हमने गर्ल को हाफ बनाया था. ठीक है, तो ये हाफ गर्ल भी हमें बता रही थी दैट इंफॉर्मेशन व्हिच इज रेफर्ड टू इन द स्केल इज नॉट कंप्लीट. तो उसी तरीके से अगर हमें 85 को दिखाना होता तो या तो मैं इसमें ये एक पूरा बनाती. ठीक है, अगर इसमें कुछ और अगर 87 को दिखाना होता तो मैं ये ड्रॉ करके ये करती. ठीक है, तो बस पॉइंट ये है कि अगर आपको हाफ वैल्यू अपने स्केल से दिखानी है तो यू विल नॉट ड्रॉ द पिक्टोग्राम कंप्लीटली. ठीक है, बस यही एक पॉइंट है कि अगर आपको ऐसी कोई वैल्यू मिलती है जो आपके स्केल से डिवाइड होने के बाद कंप्लीटली डिवाइड नहीं होती तो उस वैल्यू को आप कैसे पिक्टोरियली ड्रॉ करोगे. उस वैल्यू को आप क्या करोगे, जो आपका स्केल जो वैल्यू बता रहा है उसमें आप कुछ इनकम्प्लीट छोड़ दोगे. तो जो इनकम्प्लीट छोड़ोगे वो हमें ये बताएगा डायग्राम को देखने के बाद कि इसमें जो स्केल है उससे कुछ वैल्यू कम या ज्यादा है. इतना समझ में आया क्लास? Okay. It will become more easy and clear if we will study the question 2. क्वेश्चन 2 को पढ़ेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा. ठीक है, सो वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 9.1. टेबल दिया है 400 स्टूडेंट्स का और हमें स्केल सबसे पहले बना लेना है. ये है आपका स्केल. ये एक बॉय जिसके 2 हैंड्स 2 लेग्स और एक हेड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 100 स्टूडेंट्स को. ये रिप्रेजेंट कर रहा है 100 स्टूडेंट्स को. अब हम लोग इसका पिक्टोग्राम बनाएंगे फटाफट. तो मैं अब वो टेबल नहीं ड्रॉ करी, मैं डायरेक्टली लिख देती. ईयर्स, देन यू हैव पिक्टोग्राम, हियर यू हैव नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ओके, in the year 1996 there were 400 students. तो 400 को 100 से डिवाइड करेंगे तो you will get what in the question? You will get 4 in the question clearly. ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं आएगा, है ना. इस 400 completely divisible by 100?
class? Is 400 come? So what will be the question? Yes, sir. Yes, ma'am. 4. तो आप यहाँ पे 4 1, हाँ ठीक है, वेरी गुड. मेक श्योर कि हेड और लेग्स उसके बराबर ही हों, है ना. और इन द ईयर 1998 में वी हैव 535 स्टूडेंट्स. 535. तो आप जब 535 को 100 से डिवाइड करोगे तो 5 स्टूडेंट्स तो आपको क्लियरली मिल जाएंगे, है ना. 5 स्टूडेंट तो क्लियरली मिल जाएंगे, 35 रह जाएगा. 35 को कैसे डिपिक्ट करेंगे, दैट विल सी. 35 पहले तो आप 5 कंप्लीट स्टूडेंट्स बना लोगे. वन टू थ्री फोर 5. ये जो 35 शो कर रहा है हमें, जो हमारा कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा स्केल से, इसको हम हाफ बनाएंगे, है ना. हाफ कैसे बनाएंगे, हम उसका सिर्फ हेड बनाएंगे और उसका एक हैंड बनाएंगे. अगर ये क्लोज होता हमारे 600 के, तब हम इसके लेग्स भी बनाते, बट सिंस ये जो 500 है इट इज नोवेयर क्लोज टू 600, तो हमने सिर्फ इस पिक्टोग्राफ में उसका सिर्फ हेड बनाया है और एक आर्म बनाई है. इफ इट हैड बीन क्लोज टू 600 तो हम इसके एक लेग्स को भी ड्रॉ करते, क्योंकि ये जो 500 है, इफ वी विल डिवाइड दिस 535 विद आवर स्केल, तो जो क्वेश्चन है इट विल कम, जो क्वेश्चन जो रिमाइंडर है वो आपको कुछ मिलेगा 35. तो उस 35 को आप पिक्टोग्राम में कैसे डिपिक्ट करोगे, आप पिक्टोग्राम में उसको हाफ बनाओगे, ठीक है. अगर ये 35 जो है ये 100 के क्लोज होता, मतलब अगला 100 कब आएगा, अगला 100 आपका 600 पे आएगा, है ना. 600 के क्लोज होता तो वी माइट हैव ड्रॉन हिज लेग्स, वी माइट हैव ड्रॉन हिज अनदर आर्म, बट आप देख सकते हो कि जो ये 535 है ये अगले 600 से काफी दूर है ना. 35 में आप कितना ऐड करोगे, यू विल ऐड 65 मोर टू गेट टू रीच 600, यानी ये 600 से काफी दूर है, इसीलिए हमने इसमें सिर्फ इसकी एक आर्म बनाई है. इज इट क्लियर क्लास? क्लास इज इट क्लियर? Okay. So now in the year 2000 में कितनी वैल्यू है, 472. देखो 472 का जो नेक्स्ट 100 वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 400 की 500. ओके, तो इसमें तो हम 4 कंप्लीट ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना. ये कंप्लीट ड्रॉ करेंगे और इसमें अब हम इसके लेग्स को भी ड्रॉ कर सकते हैं. तो आप इसमें और इसमें डिफरेंस समझो. इसमें डिफरेंस ये है कि 500 से 600 जाने में वी आर फार अवे टू रीच 600, इसलिए हमने सिर्फ एक आर्म बनाई है. 472 इज वेरी क्लोज टू नेक्स्ट 100 दैट इज योर 500, इसीलिए हमने इसकी एक लेग बनाई है. तो इसी तरह से आपको पिक्टोरियली जो है अपना डेटा उसको रिप्रेजेंट करना है. ओके, नाउ यू हैव 2002 में you have 600, तो directly you will draw 6 figures. 600 is completely divisible by 100, isn't it, class? Ma'am, 6. तो we'll draw 6 figures. 3 2. बस, who is this? Beta, if you will remove from the class, then don't try later. Okay. Now last में you have 2004. 2004 में you have 623. Again this 623 is very far away. तो 6 तो फिगर्स आपकी क्लियरली बनेंगे और हाफ फिगर आपका बनेगा. So these are the 6 figures. 3 to 5 6 और एक आपका हाफ फिगर बनेगा. ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन. इसमें जो प्रॉब्लम थी वो यही थी कि आप ये जो हाफ वैल्यूज है इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. नाउ बेस्ड ऑन दिस यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 8. हाउ मेनी सिंबल रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईयर 2002.
तो 2002 में कितने सिंबल्स को हमने ड्रॉ किया क्लास? हाउ मेनी सिंबल्स? 6. तो 6 सिंबल्स. Ma'am, 6. ओके, 6 सिंबल्स यू विल राइट. ठीक है. बी में क्वेश्चन इज हाउ मेनी सिंबल रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर द ईयर 1998. 1998 ईयर में आपने कितने सिंबल्स बनाए हैं क्लास? सिंबल्स कितने बनाए हैं ईयर 1998 में? सो यू 5 and हाँ 5. ओके, 5 complete and 1 incomplete symbols. ठीक है क्लास, इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. Okay. B part of the question is not okay. B part of the question is not there in your syllabus. है ना? So B part is not there. Okay. So you have to draw the diagram और pictorially उसको represent करना है. With this we have finished our exercise 9.2. Next topic is your bar graph.